Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. This is the last video in the series of the play as you like it, because we have already covered scene number 1, scene number 2, and this is the last scene in the book, which is scene number 3. After this you will have another stream of videos from this play, obviously, because we have exercises, we have question answers, we have MCQs, a lot of things. So I hope you do check that as well. Abhi filhal we have to directly proceed towards scene number 3. So without waiting any further, we'll go there, and I am going to link scene number 1 and scene number 2. So I hope you can check that out as well. And whatever confusions you might have, आप लोगों की इस वीडियो से दूर हो जाएं. But still, if you have any confusions, if you have any questions, kindly feel free to reach out. You can get the number in the description box as well, or you can simply comment under the video, which don't forget to do. Like the video, subscribe to the channel, and let's head towards scene number 3. Acha bhai. So a little background going on inside the living room where they had taken Cretin to after he had landed, and they were talking, getting to know each other. Then we had scene number 2 where General Powers was interrogating Cretin inside the study. At the end of the scene 2, we still have no answers as to why Cretin is here, what's his motive, what he wants to do. Lekin scene 2 के end तक आते आते it's pretty much clear कि Cretin is some very supernatural creature, because he has the ability to tell the future, he has the ability to read the thoughts, he can hear the thoughts. Actually, he cannot read it, he can hear them. He can create invisible walls around things without moving himself a bit. He's traveling in a spaceship that has got no tools. So all of these things, और अभी तक there is no answer that they have found कि why is he here. तो scene number 2 के end में Cretin had stood up from his chair in the study room, और वहाँ से निकल के वो आ गए थे लिविंग रूम में अपने होस्ट यानी कि स्पेल्डिंग फैमिली से मिलने के लिए. तो scene 3 के स्टार्टिंग में आपके पास डिस्क्रिप्शन यही लिखी हुई है कि इट्स द सेम लिविंग रूम एज इन scene 1. मिस्टर स्पेल्डिंग के घर का जो लिविंग रूम था वहाँ वापस आ चुके हैं. Cretin is shown here sitting with John and Ellen. Ellen is Spelding's daughter and John is her fiancé. Cretin बोलते हैं भाई I don't mind curiosity. कहते हैं कि मुझे क्यूरियोसिटी पे कोई बुरा नहीं मानता मैं. ऑब्वियसली दे डोंट नो अबाउट मी, दे वांट टू नो अबाउट मी. उन्हें नहीं पता कि मैं कैसे शिप में आया, शिप में कुछ भी नहीं था, लेकिन आई कैन नॉट परमिट दैम. कहते हैं मैं इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि वो आके मेरी शिप को रैक कर दें. एलन से बोलती हैं लेकिन तो फिर तुम्हारा प्लान है क्या, लाइक व्हाई आर यू हियर, अब तुम आ चुके, अब तुम्हारी. Cretin बड़े मज़े का आंसर बोलते हैं कुछ खास नहीं, जस्ट को अपने आप को मसरूफ़ रखूँगा. आई हैव अ प्रोजेक्ट कर टू, उनको करूँगा, काम है उनको करूँगा. फिर वो दोबारा से कहता है कि आई कैन नॉट बिलीव यू आर Cretin still is in an awe. और अर्थ के ऊपर वो पहुँच चुके हैं. अगर कहते हैं अगर यकीन लगता कि यकीन आ रहा, हमें भी यकीन नहीं आ रहा. वी आर इन द सेम बोट. मतलब है सेम बोट का मतलब है कि वी आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन एज यू आर. You don't know and we don't know कि we have an alien living right in front of us, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. खैर ये सारी बातें होती हैं. Cretin बोलते हैं कि आना तो मैं बहुत पहले से चाहता था तुम लोगों के प्लानट पे, बट आई ओनली गॉट द टाइम yesterday and now I'm here. यानी कि it took him only a day. John also asked him कि तुम सिर्फ एक दिन में डिफरेंट डायमेंशन को ट्रैवल करके अक्रॉस द स्पेस तुम पहुंच चुके हो अर्थ के ऊपर. हाउ इज दिस इवन पॉसिबल. तो Cretin बोलते हैं वेल वन ऑफ माई डेज, यानी कि मेरी टाइम की कैलकुलेशन जो है, जो उनके प्लानट के टाइम की कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इट टुक हिम जस्ट अ डे. लेकिन कहते हैं तुम लोगों को तो भी टाइम के बारे में पता ही नहीं है. तो जॉन बोलते हैं इसका मतलब तुम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र कर रहे हो, गिवन बाय आइंस्टाइन. Cretin says no, it's much more involved. यानी कि वो कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो बिल्कुल एक बिगिनर स्टेज है और बहुत कुछ शामिल है इसमें, लेकिन कहते हैं कि तुम लोगों को अगले 2000 ईयर्स रिक्वायर्ड हैं इस सब को समझने और सीखने के लिए. अभी तुम लोग बिल्कुल प्रिमिटिव बिगिनिंग स्टेजेस पे मौजूद हो. तो जॉन इसको बोलते हैं अच्छा तो फिर अभी के टाइम में और 2000 ईयर्स तक के गैप के बीच में व्हाट डू यू से वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए. तो जस्ट गो, कुछ नहीं, जस्ट गो योर ओन वे. जो तुम लोग कर रहे हो वही करते रहो. यू हैव नो आइडिया कितनी एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइव्स हैं. फिर से वही तंज के बिल्कुल बिगिनर सिंपल अनडेवलप लाइव्स हैं तुम लोगों के. तो जस्ट एंजॉय करो इस टाइम को.
एलन बोलती हैं मुझे उम्मीद है कि यू आर गोइंग टू स्टे विद अस, जब तक तुम अर्थ के ऊपर हो तुम हमारे घर में ही रहोगे। कर्टन बोलते हैं बहुत शुक्रिया आपके, हो सकता है परहैप्स हो सकता है कि मैं रह भी जाऊँ, बट वो कहते हैं आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड, यानी कि वो कहते हैं कि तुम अपने घर में एक ही मेहमान को रखे 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 थक जाओगे, एक वक्त आएगा। एलन बोलती हैं बिल्कुल नहीं, और बोलती हैं कि डैडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी, यानी कि वो तो हद से ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे, बिकॉज देन ही कैन इंटरव्यू यू। जाहिर सी बात है, असल मिस्टर स्पेल्डिंग का मकसद क्या था कि बीइंग अ टीवी ब्रॉडकास्टर ही वांट्स टू गेट द फर्स्ट इंटरव्यू फ्रॉम एलियन, फर्स्ट एवर इंटरव्यू इन द वर्ल्ड। तो वो तो इस चांस पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रेटन से व्हाट इट्स लाइक इन जो हालेक्सी नेट्स जॉन इज क्यूरियस टू नो कि है क्या आउटर स्पेस में। क्रेटन का लेकिन आंसर बिल्कुल ऑपोजिट है, बोलता है डल। बोलती हैं लेकिन एलन बोलती हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि इट वुड बी डिवाइन। डिवाइन का मतलब ब्यूटिफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू नो, इट वुड बी स्पार्कली। लेकिन पावर्स एक क्रेटन का है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अचानक होता क्या है कि इन तीन लोगों की कन्वर्सेशन के बीच में क्रेटन मिस्टर पावर्स को जवाब देते हैं कि नो जनरल इट वोंट वर्क। हैं, ये क्या बात हुई? ही वॉज टॉकिंग टू जॉन एंड एलन, अचानक से पावर्स कैसे आ गए? बिकॉज गोइंग बैक टू वन ऑफ हिज सुपरनैचुरल एबिलिटीज क्रेट थॉट्स, तो हेयर द थॉट्स। आपका ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करेगा, सो यू मे स्टॉप इट, क्योंकि आप जो भी करेंगे उससे स्पेल्डिंग का गार्डन ही बेचारा पहले ही शायद एलन बोल वाकई बता सकते हो कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं? कर्टन बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन जब मैं ये सब कुछ बता रहा होता हूँ इट मेक्स मी अभी, यानी कि मैं थोड़ा सा करता हूँ चॉकलेट फील करता हूँ, चकरा जाता हूँ, थोड़ा सा वीक हो जाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इट टेक्स अ लॉट। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि तुम लोगों का जो माइंड, तुम लोगों के दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस। क्योंकि एक और एबिलिटी आ रही है सुपरनैचुरल इनकी कि वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स, यानी कि एलियंस जहाँ से क्रेटन आए जिस प्लानट से, दे हैव द एबिलिटी कि अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकें। और कहते हैं कि तुम लोग तो नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है। और कहते हैं कि जिन जिन चीज़ों के बारे में तुम लोग सोचते हो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लाइक एट द सेम टाइम यू कैन थिंक अबाउट अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो एलन में इस बात को सुन के ना थोड़ा सा बेचारी अपने आप को बुरा फील करने लगती है, बोलती हाउ ऑफुल, कितनी बुरी बात है ये कि देयर इज़ नो प्राइवेसी नाउ, लाइक यू कैन जस्ट टेल एवरीथिंग व्हाट वी आर थिंकिंग, कोई प्राइवेसी नहीं है। क्रेटन बोलते हैं हाँ बिल्कुल सब कुछ बता सकता हूँ। कहता है यही एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न, यानी कि तमाम वजूहात में से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के माइंड्स को पढ़ना चाहता हूँ, हाउ दे वर्क, हाउ यू ऑपरेट, हाउ यू क्रिएट फीलिंग्स, हाउ डू यू रिएक्ट टू द फीलिंग्स, ऑल ऑफ दैट। बट एलन इस बात का जवाब क्या दे दिया? आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्टेड, यानी कि मैंने अपने आप को कभी इतना डिसऑनरेबल, इतना डर्टी फील नहीं किया, बिकॉज नाउ लिटरली लाइक देयर इज़ नथिंग दैट दे कैन हाइड फ्रॉम क्रेटन। जो सोच रहे हैं वो भी पता है, जो नहीं सोच रहे वो भी पता है, फ्यूचर भी उसको पता है, सो लाइक व्हाट डू ह्यूमंस डू, दे हैव गॉट नथिंग। जॉन खैर बोलते हैं कि अब तो मैं सिर्फ एक चीज़ सोचूंगा और वो है एग्रीकल्चर, ताकि अगर क्रेटन मेरे थॉट्स को पढ़ भी ले तो उसे सिर्फ इसी बारे में समझ आए। तो स्पेल्डिंग बोलते हैं जाहिर सी बात है तुम और क्या सोचोगे इसके अलावा, एक और तंज बेचारे के ऊपर। एलन आके फिर बोलती हैं उन्हें डैडी डोंट से लाइक दैट, क्योंकि जॉन को शुरू से प्ले में लेके और आखिर तक अभी भी ये बेचारे पे तंज ही कर रहे हैं। बट क्रेटन टेल्स हिम कि नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो इशू, यू कैन स्टिल कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट एलन, और इसमें कोई मसला नहीं है, यू हैव गॉट सम पर्पल थॉट्स अबाउट हर, यानी कि सम इंटरेस्टिंग थॉट्स अबाउट एलन। स्पेल्डिंग खैर अब इस बात के बाद होता क्या है कि अब ऑब्वियस सी बात है नो बडी कैन डू एनी थिंग। क्रेटन की जो सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं उसे तो यही लग रहा है कि ही इज़ कम्प्लीटली ओवर पावर्ड ह्यूमन्स। कन्वर्सेशन के बाद ये स्पेल्डिंग क्रेटन टेल्स जॉन कि यू कैन कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट वट एवर यू वांट टू थिंक, देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। स्पेल्डिंग पावर्स के साथ बात करते हुए बोलते हैं कि तुम इस मार्शल लॉ वाली चीज़ को बहुत आगे लेके जा रहे हो, यानी कि वी कैन नॉट कॉल, वी कैन नॉट गो आउट, नो बडी कैन कॉल अस, नो बडी कैन कम इन, ये इट्स गेटिंग टू फार। पावर्स बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली हमें ये करना पड़ेगा, जब तक वाशिंगटन यानी कि कैपिटल से हमें फाइनल डिस्पोजिशन, फाइनल फैसला ना आ जाए तब तक हमें ये काम रखना है। स्पेल्डिंग बोलते हैं लेकिन ये अनसपोर्टेबल है, कैसे तुम हमारे साथ ये सब कर सकते हो?
क्रेटन बेचारा अफसोस करते हुए बोलता है कि पुअर मिस्टर स्पेल्डिंग, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ रहा है, इफ़ यू वांट आई कैन गो। तो इस बात के जवाब सुन के पावर्स क्या बोलते हैं, तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो क्रेटन, तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा जब तक मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं। क्रेटन बोलते हैं मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि आप मुझे रोक भी सकें, एंड ऑब्वियसली डजंट लुक लाइक कि पावर्स इनको रोक सकते हैं, ना अपने ऑर्डर से, ना अपने डर से, ना अपने वेपन से। रुकूंगा, ये मर्जी है तो 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 रुकूंगा, उनकी मर्जी नहीं है तुम्हें। अब स्पेल्डिंग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई आप रुकें, क्योंकि जनरल पावर्स उन्हें कोने से गुस्से से देख रहे थे कि तुमने इजाज़त नहीं देनी बाहर जाने की। तो स्पेल्डिंग उन्हें बोलते हैं कि नो नो प्लीज़ स्टे बिकॉज वी वांट कि आप हमारा अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं। क्रेटन बोलते हैं बिल्कुल, और जाहिर है कि आप इंटरव्यू भी चाहते हैं मुझसे, और ऑब्वियसली आई गिव यू दैट इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, अब खैर ये सब कुछ होता है, पावर्स थैंक यू करते हैं, क्रेटन सेज डोंट मेंशन। लेकिन अब स्पेल्डिंग बोलते हैं कि जनरल पावर्स अगर आपको माइंड ना हो तो कैन आई आस्क क्रेटन सम क्वेश्चंस, क्योंकि जनरल पावर्स तो कुछ भी नहीं उससे पूछ पाए हैं। फिर मिस्टर स्पेल्डिंग उससे पूछते हैं कि भाई क्योंकि तुम हमारे माइंड्स पढ़ सकते हो तो ऑब्वियसली यू नो कि हमारे फेयर किस चीज़ के, हमें किस चीज़ से डर लगता है। क्रेटन बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है। स्पेल्डिंग बोलते हैं कि भाई हमें ये लग रहा है, हमें ये डर है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग अ हॉस्टाइल रेस, तुम हमारे दुश्मनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुम हम पे हमला करने आए हो। क्रेटन बोलते हैं मैं पहले ये शोर कर चुका हूँ कि भाई हम बिल्कुल हॉस्टाइल नहीं हैं, हम आपके पास इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, सिर्फ मैं हूँ जिससे इंटरेस्ट है, वरना कोई और इंटरेस्ट लेता ही नहीं है आपके प्लेनेट की प्रेजेंट स्टेज के ऊपर। तो स्पेल्डिंग बोलते हैं इसका मतलब हमारे स्टेजेस पे, हमारे मॉडर्न टाइम्स पे, हमारे फ्यूचर के ऊपर। तो क्रेटन बोलता है भाई आपसे मैं फ्यूचर तो डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट परमिटेड, मुझे इजाज़त नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे यही सोचते हैं कि मैं अपना टाइम बस वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के बारे में पढ़ के, आपकी सोसाइटी को पढ़ के, क्योंकि दे बिलीव कि आप लोग बिल्कुल प्रिमिटिव हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बोलते हैं यू आर माई हॉबी, आप लोग मेरी हॉबी हैं और मुझे अपनी हॉबी को फुलफिल करना अच्छा लगता है। तो पावर्स बोलते हैं इसका मतलब तुम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हो ताकि तुम एक टूरिस्ट की तरह लुक अराउंड करो, सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव। नेटिव मतलब एक मकामी इंसान बन जाओ, और कुछ नहीं करना तुम्हें। तो क्रेटन बोलता है बड़े मज़े का एक्सप्रेशन है भाई ये तो, सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव। तो बोलते हैं दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो पावर्स फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वेल मेरा तो ये ख्याल है कि तुम्हें यहाँ भेजा है किसी और सिविलाइजेशन की जानिब से, क्यों? ताकि तुम इन्वेजन से पहले रिकनॉइटर कर सको। अब यहाँ रिकनॉइटर करने का मतलब होता है कि मिलिट्री ऑब्जर्वेशन करना, हमला करने से पहले इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जमा करके पहुँचाना। तो क्रेटन कहते हैं ये तो आपका व्यू है भाई, और आपकी एजम्पशन बहुत प्रिमिटिव है, क्योंकि ऑल यू पीपल बिलीव इसके सारे स्ट्रेंजर्स हॉस्टाइल हैं। कहता है ये गलत है बिल्कुल। पावर्स कहते हैं भाई तुम ये डिनाई कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारे लोग हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करेंगे। क्रेटन बोलते हैं बिल्कुल। तो फिर पावर्स बोलते हैं तो उनका मकसद क्या है, क्या वो कोई कम्युनिकेशन हमारे साथ कायम करना चाहते हैं, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस, व्हाट डू दे वांट टू डू? क्रेटन कहते हैं भाई कम्युनिकेशन तो हमारी बहुत अरसे से है आपके प्लानट के साथ, लेकिन ट्रेड और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी रेस हम करते ही नहीं है, इट्स समथिंग दैट ह्यूमंस डू, और हमारा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब ये भी नहीं करना। पावर्स बोलते हैं भाई आई गिव अप, यानी कि अब मैंने हार मान ली है। आई डोंट नो हाउ टू गेट एनी आंसर्स फ्रॉम दिस एलियन। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बता रहा वो, ना ट्रेड है, ना कम्युनिकेशन है, ना कोई और है, फिर क्या है? तो स्पेल्डिंग बोलते हैं भाई अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है अर्थ के ऊपर तो क्या तुम अर्थ को डोमिनेट करना चाहते हो, यानी कि तुम अर्थ को अपने अंडर लेके आना चाहते हो? क्रेटन बोलते हैं यस एग्जैक्टली। तो पावर्स हैरान होते, बोलते अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे अंदर, तुम्हारे लोगों को। क्रेटन बोलते हैं उनको नहीं है लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट है। तो एवरीबडी इज़ अ बिट शॉक्ड कि एक अकेला एलियन क्या करेगा। क्रेटन बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस दुनिया का चार्ज लेने के लिए। तो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का? बोलते हैं नो, द होल वर्ल्ड। और फिर वो बड़े हैरान होते हैं कि एक आदमी क्या करेगा। क्रेटन बोलता है बड़े मज़े से आप इंतज़ार करें और देखें मैं क्या करता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ करे, जनरल पावर ऑर्डर करते हैं अपने एड को कि गो एंड ग्रैब हिम, पकड़ो उसे। इससे पहले कि उसके कोई करीब पहुँचे, अगेन ही हैज़ क्रिएटेड एन इनविजिबल फोर्स फील्ड सो नोबडी कैन इवन गेट क्लोज टू हिम। क्रेटन यही बोलते हैं कि यू कैन नॉट टच मी, और यही मेरे गेम का हिस्सा है। और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, और वो उठ के चले जाते हैं। स्पेल्डिंग बोलते हैं कि मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ कमरे का। बोलते हैं नो 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 आई कैन गो ऑन माई ओन। और फिर वो उठ के बड़े मज़े से चले जाते हैं। चलते चलते मिसेस स्पेल्डिंग उन्हें मिलती हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कुछ सोच रही होती हैं, इससे पहले कि वो कुछ बोलें स्पेल्डिंग बोलते हैं नो इट्स नॉट योर ड्रीम, आप हकीकत में मुझे देख रही हैं, और कल जब आप उठेंगी तब भी मैं यहीं मौजूद होऊंगा,
और फिर वो बड़े मज़े से उठ के आयरॉनिकली चले जाते हैं कमरे में, एंड ऑल द ह्यूमंस आर सिटिंग देयर डम्बफाउंडेड कि हम क्या करें और क्या ना करें. And with this, the scene has also ended and the play has also ended. यानी कि towards the end, now they have found the purpose of his visit, और वो ये है कि अर्थ को dominate करना है. And yet all the humans on the earth, all the armies, all the military and everything, nobody can stop him. And he's just one of his race. तो फिर अब क्या होगा अर्थ का? This is left for your thinking and imagination. But यहाँ पे हम end करते हैं इसको. अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब. Take care.